Honorable President, with your permission, let the defense investiture ceremony commence. Balakku. Shaurya Satakra for gallantry beyond combating the enemy through Pakatra. Inspector Laxman K. Fadat, Inspector Rameshwar Prat Deshmukh, Chhattisgarh Police. April 16, 2024, a massive operation was launched under the leadership of Inspector Laxman Kivat and Rameshwar Prasad Deshmukh. Naxalites ambushed and opened heavy fire, jeopardizing the safety of approximately 200 soldiers. The officers immediately devised a counter strategy so daring that the Naxalites were stunned. When 4 soldiers were injured in the encounter that lasted more than 3 hours, the commander deftly rescued the injured comrades from the other side, engaging them in the crossfire. Many Naxalites were killed in the operation. This operation is considered one of the largest and most successful operations in Chhattisgarh district. You are awarded the Shaurya Chakra for your unparalleled courage and exceptional leadership skills on the battlefield. Inspector Laxman Kivat. Inspector Rameshwar Prat Deshmukh. Lieutenant Colonel Nitesh Bharti Shukla, 19th Patel in the Sikh Regiment. July 2024. Upon receiving information about terrorist infiltration along the line of control, Lieutenant Colonel Nitesh Bharti Shukla set up an ambush. During the operation, he crawled forth amidst heavy fire and grenade attacks and killed two terrorists at close range. He also eliminated a terrorist who was firing lightly at his comrades once. For his intrepid zakar and ordinary courage, he is awarded the Shaurya Chakra. Lieutenant Colonel Nitesh Bharti Shukla. Major Aditya Pratap Singh Sena Medal, the Rajput 44 Assam Rifles. Major Aditya Pratap Singh, upon receiving information about a heavy infiltration and a major attack in the border area of Arunachal Pradesh, launched an operation. After 72 hours of surveillance, he tracked down the terrorists. Despite fierce fire from just 30 meters, the fearless officer, without caring for his life, single-handedly killed the most wanted terrorist. For his indomitable courage and dedication to the nation, he is awarded the Shaurya Chakra. Major Aditya Pratap Singh. Major Ashish Kumar, the Parachute Regiment. November 20, while conducting surveillance on a possible terrorist route in Anantnag, Major Ashish Kumar identified two armed terrorists.
Despite heavy fire, disregarding his own life, he killed both terrorists, one of whom was a notorious A plus category terrorist, or what? For awarded the Shaurya Chakra. Major Ashish Kumar Sepoy GD Sanjay Tiwari, Sepoy GD Fida Hussain Dar, Central Reserve Police Force Ukkape, 2nd November 2024 at 2:45 a.m. information was received about a foreign terrorist hiding in a locality under Kaniyar police station. Without wasting any time, Sepoy GD Sanjay Tiwari and Fida Hussain Dar surrounded the targeted house. An exchange of fire ensued. The terrorist also lobbed several grenades, hitting both the brave soldiers in close combat with bullets and grenade fragments. Despite being seriously injured, they furiously advanced forward and killed the foreign terrorist his heavy defensive position. You are awarded the Shaurya Chakra for exceptional gallantry despite being shot. The Sopla. Sepoy GD Sanjay Tiwari. Sepoy GD Fida Hussain Dar. Assistant Commandant, presently Deputy Commandant Mohammed Shafiq, 26 Assam Rifle. November 2024, a column led by Deputy Commandant Mohammed Shafiq was deployed in the northeastern part of Lakshgar in the Chinta area. Taking advantage of the darkness, a terrorist attempted to break the cordon. At that time, Deputy Commandant Mohammed Shafiq, disregarding his personal safety, advanced close to the terrorist under heavy fire and killed him at point-blank range. Saving his comrades without any loss of life. He also recovered a large quantity of war material. For displaying indomitable courage, leadership, and exceptional tactical skill, Deputy Commandant Mohammed Shafiq is awarded the Shaurya Chakra. Deputy Commandant Mohammed Shafiq. Lieutenant Commander Suraj Parashar. On 6 November 2024, Lieutenant Commander Suraj Parashar was assigned the responsibility of a joint cordon and search operation. When one of the terrorists trapped in the house tried to break the siege, he immediately realized the gravity of the situation and fearlessly targeted the second terrorist hiding there. He also informed his comrades in time. As a result, his men neutralized both terrorists. For conspicuous gallantry, above and beyond the call of duty, in keeping with the highest traditions of service, Lieutenant Commander Suraj Parashar is awarded the Shaurya Chakra. Lieutenant Commander Suraj Parashar. Seaman First Class Marine Commando, presently leading Seaman Ram Goyal. During Operation Chunta Bidori, was deployed to cordon off the targeted house under heavy fire where two terrorists were hiding.
You displayed great tactical maturity and fearlessly broke cover several times and delivered accurate fire to capture the second terrorist hiding in the targeted house. Subsequently, you entered the targeted house with your comrades and recovered the bodies of the neutralized terrorists and seized war material. Your tactical skill, indomitable courage, and conspicuous gallantry, above and beyond the call of duty, leading Marine Commando Ram Goyal is awarded the Shaurya Chakra. Leading Seaman Marine Commando Ram Goyal. Sepoy GD Saddam Hussein, CRPF. Jammu and Kashmir received specific information about the presence of 2 heavily armed foreign terrorists. Sepoy GD Saddam Hussein, as part of a planned search operation, strategically took up positions in the target area under adverse conditions. Despite indiscriminate fire from terrorists that are armed with आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन CRPF। ग्यारह नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन। राइफलमैन भोजराम साहू, 3री बटालियन आसाम राइफल्स। पंद्रह नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से 2 विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू। विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट। इक्कीस नवंबर 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया।
एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आईं। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अडिग मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह। मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट, 50वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ 3 सफल ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए एवं 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया, जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता। Major Leishang Them Deepak Singh, the Parachute Regiment. उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेशांग थेम दीपक सिंह। मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 32वीं बटालियन, आसाम राइफल्स। उनतीस अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद 3 सशस्त्र आतंकियों के शव एवं 3 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू। Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment. मेजर शिवकांत यादव ने
एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में 2 अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर शिवकांत यादव। सूबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स। चौदह मई 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार PH मोसेस। मेजर विवेक, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 42 राष्ट्रीय राइफल्स। पंद्रह मई 2025 को पुलवामा जिले में एक घेरा और तलाशी अभियान के दौरान मेजर विवेक की टुकड़ी आतंकवादियों की गोलीबारी की चपेट में आ गया। आपने आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर विवेक। राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स। नौ जून 2025 को राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, पैराशूट रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार ने सीमावर्ती इलाके में एक किलेबंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और